Mina, क्या चाय वाय बनवा रहा है क्या चारा साहब? मीना भाभी को बुला रहे हैं। Good evening to everyone present here with us today. This is Shreyan from IGCP. I would like to welcome all the viewers who have joined our platform for better exchange of knowledge that is going to be shared by our keynote speaker, Doctor, for today's session. With much pleasure and honor, I would like to welcome a very renowned doctor, Dr. R.M. Chabra. Sir is MD Med, FIMSA, FICP, FDI, FRCP, Edinburgh, certified course in diabetes recognized by BMJ Royal College of Physician and 40C. Sir is Senior Consultant Physician, Director of Chhabra Medical Center, Pitampura, Delhi, Max Shalimar Bagh and Saroj Super Specialty Hospital, Delhi. Sir is also a founder president of North Delhi Physician Forum, past faculty member of Indian College of Physician API and member editorial advisor board JAPI, past chairman and secretary API Delhi State Chapter. Sir is also a past treasurer and executive member of CSI Delhi branch, state executive member IMA, DNZ, publication in national and international journal, ex-governing member Association of Physicians of India, ex-chairman Physician Welfare Committee API, Surrender Lal Roopwati Award, Delhi Medical Associate 2005. Sir, also awarded by Bharat Ratna, His Excellence APJ Abdul Kalam, Forum President of India. Now, without any further delay, I would like to welcome Sir at our forum and would like to hand over the session to him. For today's topic, we have COVID-19 variant is the new strain. Over to you, sir. Thank you very much. First of all, I would like to thank you, ICCP and Med Talk platform, giving us the platform for the interactive sessions. Dear friends, this topic has been chosen because it is a very hot topic. One should know about this topic. First of all, I would like to introduce my panelist. First panelist is Dr. Jyoti Chugh. She is a senior consultant gynecologist, North Delhi 40 Shalimar Bagh, and senior consultant at the Satyam Medical Center, Gujranwala, and senior consultant at the North Apollo, Cradle, Moti Nagar, and head of the department of the Sundarlal Jain Hospital, New Delhi. Dr. Chugh is the president of the Obs and Gynae Study Group, North Delhi, and she is also a president-elect IMA DNZ, and she is executive member of the Society of the Vaginal Surgeons of Delhi and founder secretary of the North Delhi Obstetrician and Gynecology Group. And she has won numerous awards like the President Appreciation Award, IMA DNZ, and Women Achievers Award, and she's the Best Worker Award of the DMA. Other Dr. Naresh Chawla, he doesn't require an introduction. He's a very well-known personality, not nationally but internationally. And he is a general physician and vice president of the Delhi Medical Council. Settled in the medical practice at residence cum clinic at LU Block 99, Pithampura, and a flair of the evidence-based practice of the medicine for last 38 years as a medico-social activist and former National Joint Secretary of the IM headquarters and Vice President of the Delhi Medical Council, special international activist in the medical legal aspects and past President of the DMA and the IMA North Zone and past President of the Pitampura Medical Forum for the last many years. None other than the Professor Dr. Satish Kumar Gupta. He is a director of the Shivam Nursing Home and senior consultant physician. He is the beauty of this. He is the author of a book, Journey of the COVID in the India. This is the first book on COVID to be approved by the United Nations at the headquarters of the Geneva.
and voluntary editor Wikipedia, and joint editor of the first Hindi medical journal, then Punarva, and assistant editor general of the International Society of Medical Science, and honorary professor of the IMA headquarters, and he is a teaching faculty of the medicine at GS Medical College. He has a robust social media presence on the YouTube with more than 1,100 medical videos and more than 1 crore national and international viewers. He has more than 57 followers and more than 60 national and the international publications. None other than the Dr. Praveen Bhatia. He is a medical director at Bhatia Hospital and a senior consultant physician with the specialist interest in the diabetology, and medical director of the Bhatia Hospital, formerly at Sir Gangaram Hospital as a CCO in charge, and worked as a research fellow with the ICMR, member of the IMA, ACP, and the API, and Jocelyn attended various university and the international conferences as a delegate in the faculty, has numerous number of the publications and the CMA lectures, past executive honorary joint secretary of the IMA DNZ, and present executive member of the NDPF, and presently running on setup at the Bhatia Nursing Home at GT Canal Road, and senior consultant president and the IMA, senior vice president, IMA DNZ. So before today, my topic is the COVID variant. My slide is visible? Yes, it is visible. Today's topic is the COVID-19 variants. Is the new strain variant of the concern of the interest? We will discuss what is this today. Before going to my topic, I would like to say something about the COVID-19 virus and the JN.1 variant. Novel coronavirus COVID-19 was identified in the Wuhan. Everybody knows in China, COVID-19 jumped into the animal to the human and transmitted human to the human. And droplet virus and the length and the surfaces, it is surface virus. Size of the virus is 4 to 500 micron. Incubation rate of 14 days. And virus survives on the surface. Duration of the survival varies surface to surface. So today we will discuss about the JN.1 variant of the Omicron. So before going to the virus, what is the human life? What is the human life? Human life is the age cycle from birth to the death, and to keep ourselves healthy and fit throughout the life, it is an art. If you don't know the art, then you cannot keep yourself fit and healthy. And health and fitness are the interrelated terms. And personal health is if you are healthy by the physically, mentally, socially, and spiritually, then you are healthy. If person is stress-free or the healthy, then immunity will be the strong. Because in this infection, immunity has a full role to protect ourselves. So what are the sources of the energy which keep ourselves stress-free, healthy, fit, and give the best performance? That is the food, everybody knows. Air, everybody knows the importance of oxygen. In the COVID era, sleep, adequate sleep is required to keep ourselves fit and fine. And exercise and meditation, yoga, everybody knows. So water and fluid is also important to keep ourselves fit. And if there is a malnutrition, what will happen? There is a decrease in the immunity. If immunity is decreased, the infection, either viral, bacterial, fungal, or etc., will occur either in anywhere in the body if immunity is reduced. So the mode of the transmission of this respiratory virus, direct or the contact of the contaminated hand or the object, you can transmit the virus. So what is the importance of the power of the distancing? If in this picture, if one person infected in 5 days, 2.5, after 30 days, it will be around about 406. If this infect only 1.5, then after 30 years, only 50 people. If it infect only 2.5 people in the 5 days, then after 30 days, only 2.5 people will be infected. This is the importance of the social distancing. So there is a reverse mutation. Probably first time in the history of the mankind, divided we stand, united we fall. In this case, in the COVID. So who are at the risk? Elderly person and comorbidity like the diabetes, heart disease, chronic disease, and the own immunosuppressant drug, which reduce the immunity. So the how to handle the disease, prevention, diagnosis, treatment, and the treatment of the complication. So my first question to Dr. Praveen Bhatia, being a senior physician,
As per your past experience to deal with the COVID-19 pandemic, do you think this strain is variant of the concern or the intent as of today's topic? And what are the challenges we can come across during this infection? Dr. Bhatia, please. Yes, Dr. Chabra, very good evening, friends. First of all, I wish all of you a very happy new year. And I pray to God that we don't face the things which we faced around 3 years back, so many waves. So, as very well known, JN.1 is a descendant of one Ebola, basically virus. It was detected in Luxembourg, USA on 25th of August 23. And from that, it spread to around about 41 countries, maximum cases being in France, USA, Singapore, Canada, UK, and Sweden. And globally, it is around about all SARS-CoV infections, around about 25% infections are because of this JN.1 variant. It's a subvariant of Omicron. Dr. Bhatia, Dr. Yeah. Bhatia, if you can use the Hindi language very better, I think. You want Hindi? Achha, okay. Hindi English, because it is a public program. Okay. Basically, I want to say that basically, since last 3 years, the journey dates back to around about 3 years back, when first case was detected in Kerala, in India. तब से कितने म्यूटेशंस हुए हैं इस वायरस के अंदर बेसिकली होता क्या प्रोटीन्स होती हैं कवरिंग के ऊपर जब प्रोटीन्स में कुछ चेंज आता है तो स्पाइक्स कहते हैं उसमें कुछ चेंज आता है तो म्यूटेशंस हो जाता है वायरस म्यूटेट क्यों करता है बेसिकली वायरस म्यूटेट इसलिए करता है कि वायरस को खुद सर्वाइव करना है वायरस को सर्वाइव करने के लिए म्यूटेट करता है और कुछ होस्ट में चेंजेस होते हैं उसकी वजह से या रिप्लिकेट करते समय वायरस जो है कुछ अपने अंदर चेंजेस लेके आता है इसलिए वायरस म्यूटेट करता है और आज की डेट में फ्यू मंथ्स बैक बहुत बहुत लंबी लाइनें हमने देखी स्क्रीन पे देखा मीडिया में देखा हमने चाइना में देखा कि हॉस्पिटल सामने बच्चों का इन्फेक्शन हो रहा है बट वाई आई डोंट नो रीजन क्या है इट वाज नेवर डिक्लेयर्ड किस टाइप का इन्फेक्शन था ये इट वाज नाइदर डिक्लेयर्ड बाय WHO नॉर बाय चाइना एंड रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रेन मे बी इट वाज JN.1 बट वी डोंट नो इट एंड मैक्सिमम केस बीइंग फ्रांस USA सिंगापुर कनाडा UK स्वीडन एंड ग्लोबली अराउंड अबाउट 1/4 पेशेंट जितने भी कोविड इन्फेक्शन हो रहे हैं ग्लोबली अगर देखते हैं तो 1/4 पेशेंट जो है वो JN.1 का इन्फेक्शन है और इंडिया में अराउंड अबाउट 48% पेशेंट जो 48% पेशेंट है JN.1 वेरिएंट के हैं और पहला केस जो डायग्नोज हुआ था एज वी ऑल वेरी वेल नो 8 दिसंबर को केरला में फर्स्ट केस डायग्नोज हुआ केरला से गुजरात में गया महाराष्ट्र में गया तमिलनाडु में गया तेलंगाना गोवा कर्नाटका राजस्थान दिल्ली एंड CDC जबकि CDC क्या कहती है एक इन्फेक्शन कमेटी है बेसिकली CDC कहती है जनवरी में ये केसेस और बढ़ेंगे और कल की डेट में जो JN.1 के वेरिएंट थे इंडिया में इट वाज फिगर वाज 263 केसेस वर डिटेक्टेड on 2nd of January. Next slide please Dr. Chabra. So basically WHO has classified क्वेश्चन ये था कि इस वायरस का जो किस कैटेगरी में आता है बेसिकली डॉक्टर छाबड़ा ने क्वेश्चन पूछा कि किस कैटेगरी में आता है WHO ने डिपेंडिंग अपॉन द मोर्टेलिटी डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसमिसिबिलिटी कोई वायरस कितना जल्दी ट्रांसमिट होता है कितना इन्फेक्टिव है कितने लोगों की डेथ होती है कितने लोगों को सिकनेस होती है उसके हिसाब से WHO ने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए वन इज अ वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस अदर इज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न थर्ड इज अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एंड फोर्थ इज अ वेरिएंट ऑफ being monitored वो वायरस जिसको मॉनिटरिंग से चल रही है उसकी अभी लाइक हाई कॉन्सिक्वेंस वाज डेल्टा वायरस वाज हाई कॉन्सिक्वेंस ओमिक्रॉन जो कि 2 साल पहले आया था अराउंड अबाउट नवंबर में अराउंड 21 नवंबर इट वाज ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न एंड वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट मींस इट इज इट्स ट्रांसमिसिबिलिटी वेरी हाई बट इट इज वेरी माइल्ड वायरस मोर्टेलिटी ज्यादा होती नहीं है सिकनेस ज्यादा होती नहीं है और मोस्टली एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है तो WHO ने ये बोला है जो ये वाला वायरस है JN.1 वायरस बेसिकली कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एंड देयर आर फ्यू वायरसेस व्हिच आर बीइंग मॉनिटर्ड स्टिल इट इज नॉट क्लियर्ड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सो व्हाई इट इज अ वेरिएंट ऑफ बेसिकली why this has been categorized in this particular category number 1 there is no immediate panic and I have already told कि इसका basically it is sub variant of Omicron because of म्यूटेशन इन द स्पाइक प्रोटीन स्पाइक विद प्रोटीन है कवरिंग है वायरस के ऊपर और बिकॉज इस रेप्लिकेशन एक वायरस 2 से 4 से 8 इसको कहते हैं रेप्लिकेशन एक वायरस के 2 पार्ट हुए 2 के 4 हुए 4 के 8 हुए जो इसका रेप्लिकेशन है बहुत स्पीड से चल रहा है और इसीलिए ट्रांसमिसिबिलिटी एक पर्सन से सेकंड पर्सन में सोसाइटी में समाज में ये वायरस बहुत जल्दी फैलता है हाई इसको कहते हैं हाई ट्रांसमिसिबिलिटी एंड most important point is it's immune escaper immunity ko escape karta it still it is not very clear in next few questions I think we will come out that the old vaccine is going to work over this particular JN.1 strain or not next slide please
व्हाई, व्हाट इज द मैटर ऑफ कंसर्न? हमें इस बारे में कंसर्न क्यों होना है? बेसिकली क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं? दिस इज द ओवर क्राउडिंग। लास्ट ईयर हमने भी जो न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, इट वॉज मीडिया न्यूज के, सड़कों पे बहुत रश था, लोग हिल स्टेशन जा रहे थे या किसी सिटीज में जा रहे थे सेलिब्रेट करने के लिए, अपना घर छोड़ के जा रहे थे। तो दैट इज डेफिनेटली चैलेंज वी आर फेसिंग। ए टोटल ऑफ 511 cases of COVID-19 had been discovered. Out of this, around 40% are likely to be JN.1. Next slide, please. What are other challenges we can face? वो क्या क्या challenges आते हैं? Traveling मैंने बताया पहला challenge है. Rather, I can say influenza-like illness को हम ना कह के travel-linked illness क्यों ना कहें? TLI, ILI versus TLI. And what is important? Social distancing नहीं हो पा रही है, number one. And N95 मास्क नहीं लगाया जा रहा है. हमारा ओल्ड वही जो फॉर्मूला है, SMS सैनिटेशन नहीं हो पा रहा है, चैलेंज आ रहा है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उस समय वैक्सीनेशन नहीं करवाया, in spite of so many regulations, so many recommendations of the government of India, and even free vaccination was being given, and there are still a few persons जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया। तो इस मीडियम के थ्रू बेसिकली इट इज आवर अर्ज ऑफ द ऑन द पार्ट ऑफ मेडिकल कम्युनिटी, एवरीवन मस्ट गो फॉर वैक्सीनेशन। एंड ऑनगोइंग म्यूटेशन जो है वो चलते रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज जो है, टेस्टिंग कम हो रही है बेसिकली, और हर पेशेंट की जीनोम सीक्वेंसिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए अंडर डायग्नोज हो पा रहे हैं। हम डायग्नोज नहीं कर पा रहे क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही ही नहीं है, और पेशेंट जो है टेस्ट करवाते नहीं है, कहने एडवाइस करने के बावजूद भी। इवन रैपिड एंटीजन टेस्ट जो घर पे कर सकते हैं, किट आती है, वो भी नहीं करवाते हैं। मेरी ये रिकमेंडेशन है, ईच एंड एवरीवन जिसको भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, एटलीस्ट उसको रैट टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, और किट लेके मार्केट से परचेज कर घर पे ही कर सकते हैं आप। One more challenge which we are facing nowadays, symptomatic differences ज्यादा नहीं है। बाकी अदर ओमिक्रॉन वेरिएंट से कोई सिम्टोमेटिकली वी कैन नॉट डायग्नोज कि इट इज JN.1 ही है ये। एंड स्पेशली न्यू ईयर सेलिब्रेशंस वाज अ बिग चैलेंज। जितने भी सेलिब्रेशंस हुए, ट्रेवलिंग हुई, इट वाज अ बिग चैलेंज, एंड स्पेशली इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ बीइंग विंटर विद लो ह्यूमिडिटी। जो बेसिकली जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर के अंदर ज्यादा टाइम तक रहते हैं, और ज्यादा समय तक रहेंगे तो ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ जाती है, जल्दी ट्रांसमिट हो गए, बहुत ज्यादा लोगों को कम समय में ट्रांसमिट होता है वायरस ये वाला। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो दिस इज द, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर भाटिया, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि कैसे 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 फैलता है। इसमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो हमारे को बिल्कुल टेस्टिंग वगैरह करवानी चाहिए, हमें वही करनी चाहिए जो पहले हम करते थे। SMS आपने बताया, बहुत अच्छा बताया। अब मैं आता हूँ, आपने पता प्रेग्नेंट वुमेन, इट इज वेरी कंसर्न कि प्रेग्नेंट वुमेन को अगर ये इन्फेक्शन हो गया तो क्या हो गया। तो हमारे साथ आज डॉक्टर ज्योति चुग है, सीनियर कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट है। डॉक्टर ज्योति, over to you. And being a competent obstetrician and gynecologist, as per your past experience to deal with the COVID-19 pandemic, what are the challenges we can predict trimester-wise? First trimester, second trimester, third trimester, if pregnant women contrast this infection, this variant infection. Dr. Jyoti, please. हाँ जी, नमस्कार जी, थैंक यू एंड विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आई थिंक दिस वैक्सीन जो है, अब हमें इस कोरोना की एक आदत सी पड़ गई है, इतना डर नहीं है इस बार, जबकि नया वेरिएंट है पर फिर भी इतना डर नहीं है। वी नो कि हम मैनेज कर सकते हैं इसको, ऐसे लगता है। तो हाँ, पर प्रेगनेंसी है तो इट इज़ अ स्ट्रेस सिचुएशन टू द बॉडी, तो ध्यान तो एक्स्ट्रा रखना ही पड़ता है। सो अगर बाकी लोग अपना ध्यान रख रहे हैं तो प्रेगनेंसी वाले लोग ज़्यादा रखेंगे अपना ध्यान, दे विल बी मच मच मोर केयरफुल। तो पहले ट्राइमेस्टर में रिस्क ऑफ एबॉर्शंस हमने उसमें देखा था, कोविड-19 में हो जाता था। इसका अभी तक हमारे पास डेटा नहीं है, क्योंकि हमें अभी तक कंफर्म ही नहीं है कितने केसेस हैं और क्या डेटा होगा। सो बाय द एंड ऑफ विंटर्स वील नो कि भाई कितना हमारा रिस्क है। ओवरऑल विंटर्स में हमने वैसे भी देखा है कि हमारे एबॉर्शंस के रिस्क बढ़ जाते हैं, स्पॉन्टेनियस मिसकैरेजेस बढ़ जाते हैं। अब नाउ वेदर इट विल बी बिकॉज ऑफ दिस JN1 वायरस और नॉट, difficult to say as of now, but later on we'll get data on this. So precaution better than cure. Since there is no cure, so precaution will be that yes, you start using masks in the first trimester. अगर हो जाए तो please घर पे रुको, don't join your office, no going to public places like metro से नहीं travel करो and things like that. And अगर आपको infection है तो viral infection है, कुछ भी है, take your medication. Be at home, take an antibiotic secondary cover अगर ज़रूरत है तो उसका लीजिए, and don't let it precipitate into a bronchial attack, मतलब bronchitis साथ में ना होने दे, because that will cause problems. Second and third trimester comfortable better than this. Third trimester में again risky,
क्योंकि बच्चा होने वाला है तब तक वैसे रेस्पिरेटरी एम्बेरसमेंट होती है, तो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ ऑल दीज एरियाज ओनली, कि आप हर ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज एबॉर्शन, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर इज नॉट एबॉर्शन, बट प्रिकॉशन तो लेनी ही है. शी हैज़ टू अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस, शी हैज़ टू अवॉइड प्लेसेस जहाँ पे, और अगर ये इन्फेक्शन बढ़ेगा एंड द मोर्टेलिटी इज इंक्रीजिंग, तब तो रिस्क बढ़ता ही जाएगा. एंड वी कांट टेक एन एक्सरे चेस्ट, वी कांट डू थिंग्स लाइक दैट इन प्रेगनेंसी, तो इसलिए हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. अगर इन्फेक्शन आपके वैक्सीन नहीं लगे हैं तो प्लीज़ अपने वैक्सीन्स लगवा लीजिए, अभी भी लगा सकते हैं. प्रेगनेंसी में भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है वैक्सीनेशन के लिए, और गवर्नमेंट की अभी भी अगर ऑन करते हैं ये लोग फिर से स्कीम को, तो प्लीज़ गो अहेड एंड टेक योर वैक्सीनेशन. सो दिस इज अ सजेशन टू ऑल ट्राइमेस्टर्स, किसी ट्राइमेस्टर में मना नहीं है. थैंक यू सर. थैंक यू डॉक्टर ज्योति, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे कैसे हम बचा जा सकता है, क्या क्या प्रिकॉशन रखनी पड़े. बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, थैंक यू. प्रेग्नेंट लेडी को इससे काफी लाभ मिलेगा, उनको काफी बेनिफिट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर चावला, देयर इज अ चेंजिंग सिनेरियो. We are giving the safety to the patient like this picture, and doctors are getting this safety. Now it is very violence. Medical legal problems are there especially in the COVID era. You have seen. So there are lack of the infrastructure. So many violence are there, and you see the resident were being beaten at that time. So what is your opinion? And being a vice president of DMC, as per your past experience to deal with the COVID-19 pandemic, what are the medical legal aspects to deal with this variant if contacted with the patient? And I will ask you especially the medical legal, because you are an activist, medical legal activist. So I will ask this question to you. Dr. Chawla, please. Dr. Chawla, you are unmute कीजिए. Dr. Chawla, unmute कीजिए. ये लच हो गया. Can you listen me, Dr. Chawla? Yeah. Chalo. Thank you, Dr. Chawla. First of all, my compliments to you for bringing on this platform the people who matter, number one, and a topic which concerns a lot. Although I keep on giving lots of interviews on TV channels, but a channel yours is just like a medical channel. I compliment it, and I'm sure this knowledge will be quite useful to a lot of people. First of all, before I answer your medical legal aspects, I'll just like to say, as till now, Delhi, India has hardly less than 350 cases out of a population of 140 billion, 1.4 billion. So extent is too less. Till now, it is a very nice to say, it's a very mild virus and it's not spreading very badly. Number one. Number two, although WHO had called it a variant of interest, but as far as the ground situation is in India, it's not that the governments are not taking seriously. It is just that even among our OPDs in clinics, nursing homes, hospitals, it is being taken quite gradually. Although the National Health Minister and most health ministers, including Kerala's and UP's, they have declared it an emergency and they are keeping the hospitals ready. But till now, I will say, situation is not bad at all. So we are supposed to caution the patient, not create a panic situation the way it was created in April 21. So now coming to the legal aspects and the aspect you particularly said, that patient's perspective and doctor's patient's perspective. To my patients, I always advise only one thing: you follow the typical corona protocol. As Dr. Bhatia rightly stated, wearing of mask, and I would openly say in Delhi, not even 0.1% of people are wearing the mask. Number two, avoidance of crowds and social distancing are the single most important aspect. Third aspect is हैंड वॉश, विच आई जनरली, जो मैं विश्वास करता हूं हम हिंदुस्तानियों को सीखना चाहिए. हैंड वॉश तो हमें एज ए हाइजीन वैसे भी करना चाहिए. एंड द फोर्थ एस्पेक्ट इज द इम्यूनिटी, proper diet, which is very important because the children of today are largely into junk food, which does not purpose any service. And now coming to the doctor's perspective, in last 2, 3, 4 years, so practically a decade, I have seen
द डॉक्टर वाइल प्रोवाइडिंग सर्विसेज, डॉक्टर बेचारा एक नोबल इंसान है, अपनी तन मन लगा के मरीजों की सेवा करता है, बट कहीं डाउन द लाइन डोंट फॉरगेट मोर देन 2000 डॉक्टर्स हैव serving the people, and many of our own colleagues in Delhi and North Delhi have given their lives while looking after the patients. So what do you do first? So doctor has to think his safety first. It has to be health wise. As far as this particular virus JN1 is concerned, इसका तो कोई बहुत ज्यादा बचाव का जरूरत नहीं है. हम अपने क्लिनिक में मास्क पहन के बैठे हैं. That is, we don't need a protective gear etc. at all. जो दूसरी बात आपको दूसरा मैं आम लोगों को सुझाव दूंगा कि जो डॉक्टर भाटिया कह रहे थे कि जो टेस्टिंग है वो ऑलमोस्ट नील पे आ गई है. लेट मी टेल यू डॉक्टर छावड़ा, टेस्टिंग अभी भी ज्यादा होनी शुरू नहीं हुई है. तो आई एडवाइज पर्टिकुलरली द चिल्ड्रन बिलो 10 years who have not been vaccinated at all, number one, and number two, the people who are 60 to 70 years or who are having other significant comorbidities like COPD, chronic heart disease, lung disease, kidney disease, they must, even if a influenza like disease occurs, तो उनको पहले दूसरे दिन भी अपना RT-PCR टेस्ट करा लेना चाहिए. ये पेशेंट पर्सपेक्टिव से भी अच्छा रहेगा और डॉक्टर के हिसाब से अच्छा रहेगा. और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, जो आपने बात की वायलेंस की, मैं कहूंगा वायलेंस एक सभ्य समाज में एक बदनुमा दाग है. मुझे अच्छी तरह याद है अमित शाह जी ने, जो हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं, वाइल ड्यूरिंग कोरोना उन्होंने बकायदा एक ऑर्डिनेंस लाए थे अगेंस्ट वायलेंस, बट वो टिपिकली कहा गया था वो लागू है सिर्फ जब तक कोरोना केसेस के लिए. ये बहुत बड़ी गलत चॉइस है. इसके अलावा दोबारा अभी आज से 10 दिन पहले अमित शाह जी दोबारा एक उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, लेकिन वो अनाउंसमेंट हमें पता चली है उससे हम बहुत ज्यादा बचेंगे नहीं. उससे हम सिर्फ 304A धारा से बच पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बच पाएंगे. तो हम इस आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बिल्टअप करना पसंद करूंगा. पहली बात, डॉक्टर अपना जो भी IPD पेशेंट्स है, जो इन पेशेंट है, हॉस्पिटल पेशेंट्स है, पर्टिकुलरली उन पेशेंट्स में अपने रिकॉर्ड्स का, अपने डॉक्यूमेंट्स का बहुत ख्याल रखे. क्योंकि मैं DMC में बैठता हूं और डिसिप्लिनरी कमेटी में देखता हूं, कई बार डॉक्टर्स ने सब कुछ ठीक किया होता है, उन्होंने दो ही काम ठीक नहीं किए होते. एक, डॉक्यूमेंट अच्छे नहीं किया होता और दूसरा कम्युनिकेट अच्छे नहीं किया होता. ऑलवेज मैं अपने भाइयों को कहूंगा थ्रू योर चैनल, थ्रू योर प्लेटफॉर्म, ट्राई टू कम्युनिकेट. अगर आपसे बुरा हो भी गया है तो उससे छुपिएगा नहीं, भागिएगा नहीं, कम्युनिकेट करिएगा. मुझे खुद डॉक्टरी करते हुए 40 साल हो गए हैं. मैं समझता हूं इफ कम्युनिकेशन इज प्रॉपर तो आप बचेंगे. दूसरा, मुझे खुलेआम कहूंगा कि कहीं डाउन द लाइन समाज के जो दूसरे सभ्य अंग हैं, इंक्लूडिंग मीडिया, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ नहीं है. वो हमारे साथ नहीं है. चावला आ रहा हूँ इसी बात. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ही होगा. थैंक यू डॉक्टर चावला फॉर नाइस मेडिकल एस्पेक्ट यू हैव टोल्ड. आपने सबको बताया मेडिकल लीगल कैसे हमें हार्मोनी से काम करना चाहिए, वायलेंस नहीं करना चाहिए, तब अच्छी तरह हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं. बहुत अच्छी बातें बताई आपने. नेक्स्ट, as you know, the prevention is better than cure. You see, even this wife is proposing her girlfriend with the full precaution. Prevention is better than cure. Everybody knows. So for the prevention of this COVID-19, everybody knows the vaccine. Vaccine has saved us. So vaccine, either it is active or the passive. Passive for the treatment. Active vaccination we will talk about. Now we have a very dynamic and the COVID expert, none other than Professor Dr. Satish Gupta. Now I will ask him, being a senior physician and the author of the book January of the COVID in India, can you throw light on the vaccine for this strain? Will vaccination against this COVID-19 have any role to protect against this variant? Dr. Gupta, please. डॉक्टर चावड़ा जी, आपका धन्यवाद और IJCP प्लेटफॉर्म का हार्दिक आभार कि आपने हमें यहाँ बैठने के लिए मौका दिया. और आज हम चर्चा कर रहे हैं कोविड वायरस के ऊपर, और ख़ास तौर पे जो नया वेरिएंट आया है JN1, इसका मैं समझता हूँ कि मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है. मासेस के ऊपर तो बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है, लेकिन मीडिया को बहुत, जैसी वायरस आता है, कोई नया वेरिएंट आता है, मीडिया को कुछ लिखने के लिए चाहिए होता है और वो कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर देते हैं.
जिससे कि समाज में एक अनावश्यक पैनिक सा क्रिएट हो जाता है। और इस वेरिएंट का नाम है JN1 वायरस। जैसे कि डॉक्टर भाटिया जी ने पहले बताया कि ये JN1 वायरस कोई नया कोविड वेरिएंट नहीं है, ये नया कोविड वायरस नहीं है, ये उसी कोविड ओमिक्रॉन वैक्सीन ओमिक्रॉन वायरस का प्रोजेनी है, उसी की संतान है। लेकिन ये अपने बाप से ज्यादा गोरा है, ये बहुत तेजी से फैल सकता है। लेकिन फैल तो ये बहुत तेजी से रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों के अंदर नुकसान नहीं कर रहा। इसलिए जनता को इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब हमारे बहुत सारे मित्रों का ये कहना है कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि हम JN1 को डायग्नोज कैसे करेंगे। मैं बार बार ये कहता हूं कि JN1 जो नाम दे दिया गया है, ये कोई नया कोविड वायरस नहीं है। इट इज द सेम कोविड वायरस विच वी सॉ इन वेव 1, वेव 2। और अगर आप सिंपल जो RT-PCR जो पहले आप करते थे वो करेंगे कोविड के लिए नेजल स्वैब लेकर के, तो उसके अंदर जो है ये कोविड वायरस आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट को कोविड है कि नहीं। अगर उसके अंदर JN1 का डायग्नोसिस करना है तो वो पता चलेगा जीनोम टेस्टिंग से, और जीनोम टेस्टिंग करने का अधिकार अभी तक जनता के पास या डॉक्टर्स के पास नहीं है। वो अधिकार केवल सरकार के पास है। सरकार जो है कुछ लैब्स के अंदर से सैंपल कलेक्ट करती है, उनको टेस्ट करती है NICD के अंदर या स्टेट्स के अंदर विभिन्न लेबोरेटरीज के अंदर, और उनका जो रिजल्ट होती है वो रिपोर्ट करती है इंसाकॉप को, जो एक वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म है जो JN1 के बारे में डाटा इकट्ठा करता है। अब प्रश्न ये है कि क्या JN1 बाकी वेरिएंट्स के मुकाबले ज्यादा घातक है? ऐसा नहीं है। JN1 जो है तेजी से फैलता है, लेकिन ये घातक नहीं है। ये आम टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है। दूसरा, क्या ये जो दवाइयां हमारे पास अभी उपलब्ध हैं, क्या ये JN1 के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं? जी हाँ, पैक्सलोविड जैसी दवाइयां या रेमडेसिविर जैसी दवाइयां इस वायरस के वेरिएंट के अगेंस्ट भी इफेक्टिव हैं। तो अगर किसी को कोविड आता है और उसको ICU में एडमिट होने की जरूरत है या उसको निमोनिया है, तो वो पेशेंट जो है घर पे इलाज ना करा करके प्रॉपर एडमिशन लेकर के उसका निदान करके उसका सही से इलाज करे, जैसे कि पहले कोविड के बारे में हुआ करता था। तीसरा जो प्रश्न है कि क्या हमें अपनी वैक्सीन को अपग्रेड करने की जरूरत है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और डॉक्टर ज्योति जी ने कहा कि प्रेगनेंसी के अंदर जब कोविड होता है तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। अबॉर्शंस हो सकते हैं और प्री टर्म डिलीवरीज हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रिस्क कोविड का प्रेगनेंसी में होता है वो मेरे विचार से माँ की मृत्यु दर अधिक हो जाती है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी है वो अपने आप में एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है। और अगर प्रेगनेंसी में कोविड होता है किसी भी माता को, तो उसको एक सीवियर निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हमारा जो अब तक का अनुभव है और जो अब तक की हमारे पास डाटा है, हमारे पास जितनी भी ट्रायल्स हैं, उसमें ये पाया गया कि प्रेगनेंसी के अंदर जितनी भी वैक्सीनेशन कोविड की गई वो केवल इफेक्टिव ही नहीं है पर सेफ भी बहुत है। सेफ्टी का मतलब ये है कि वो वैक्सीन, जितनी भी वैक्सीन वर्ल्ड ओवर लगी हैं, वो वैक्सीन ना केवल बच्चे को प्रोटेक्ट करती हैं पर माता को भी प्रोटेक्ट करती हैं सीवियर निमोनिया होने से। अतः सभी माताओं को ये चाहिए कि तुरंत के तुरंत, अगर वो अब तक किसी भी वजह से कोविड के वैक्सीन से वैक्सीनेट नहीं हो पाई हैं, तो वो तुरंत अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। अब प्रश्न ये उठता है, डॉक्टर ज्योति जी ने ये प्रश्न उठाया कि क्या कोविड वैक्सीन अभी भी अवेलेबल है? जी हाँ, हमारे देश में कोविड वैक्सीनेशन बंद नहीं हुआ है। हाँ, इसका शोर शराबा बंद हो गया है, क्योंकि हम जो है लगभग 2.2 बिलियन डोजेस लगा चुके हैं। 220 करोड़ डोजेस हमारा देश दे चुका है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी संख्या है वैक्सीनेशन की। आपको अगर वैक्सीन कोविड का लगवाना है तो आप कोविन पोर्टल पे जाइए, अपनी एज सेलेक्ट कीजिए, और आप ये भी चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा वैक्सीन लगवाना है। आपको फर्स्ट डोज लगवाना है, आपको सेकेंड डोज लगवाना है, या आपको थर्ड डोज लगवाना है, या आपको बूस्टर डोज लगवाना है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं, हमारे देश में 12 साल से ऊपर के सभी बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ। लेकिन दूसरी अच्छी बात ये हमारे देश में रही है, वो ये रही है कि हमारे देश में जो सेकेंड वेव थी उससे पहले वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। तो हमारे देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन कोविड वायरस से अफेक्ट हुई, कुछ सिम्टोमेटिकली अफेक्ट हुए और कुछ एसिम्टोमेटिकली सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से पीड़ित हुए। उस वक्त तो उसने हाहाकार मचाया, बहुत लोग परेशान हुए,
बहुत ऑक्सीजन की भी कमी होगी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय था। पर उसका एक आफ्टर इफेक्ट जो रहा वो ये रहा कि बहुत सारे लोगों को एक बहुत रोबस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो गई। और उसके तुरंत बाद हमारी सरकार ने क्योंकि वैक्सीन थोड़ा लेट प्रारंभ हुआ था वैक्सीनेशन में, और उसमें इतना समय लगना ही था, कोई लेट भी नहीं था, तभी वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया। तो हमारे यहाँ जो वैक्सीन का फर्स्ट डोज भी था वो बूस्टर डोज की तरह काम करता है। और हमारे देश की पॉपुलेशन को एक बहुत स्ट्रांग और हाइब्रिड इम्यूनिटी जो है वो कोविड के अगेंस्ट मिली है। और यही वजह है कि ये वैक्सीन का ये जो वायरस का वेरिएंट JN1 है, ये अभी तक हमारी पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट नहीं कर पाया है। देयर हैव बीन सम केसेस ऑफ मॉर्टेलिटी, कुछ लोगों की मृत्यु की खबर हमारे पास आई है, लेकिन जानने योग्य तथ्य ये है कि कौन लोग मरे हैं। ये वो लोग मरे हैं जो लोग की पुरानी गुर्दे की बीमारी से, गुर्दे के फेलियर से पीड़ित हैं, या जिनका लिवर फेल हो चुका है, या जो गंभीर डायबिटीज से पीड़ित हैं, या जो कि ब्लड प्रेशर की बहुत बढ़ी हुई बीमारी से पीड़ित हैं। और इन सब बीमारियों को मिला करके हम कहते हैं कोमॉर्बिड कंडीशंस, यानी कि जिन लोगों के अंदर कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं और जो गंभीर रूप से बीमार हैं और उनको कोविड ने घेर लिया है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो उनके मृत्यु की संभावना इस वायरस की वजह से बढ़ जाती है। अतः ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपना बूस्टर वैक्सीनेशन करवाएं। और बूस्टर वैक्सीनेशन जो है कोविन ऐप पर अवेलेबल है, और बहुत सारे वैक्सीन हमारे देश में बने हैं। और मैं ये मानता हूं कि हमारे देश के अंदर बने हुए वैक्सीन बहुत अच्छे वैक्सीन हैं। डॉक्टर छाबड़ा शायद कुछ और पूछना चाहते हैं। डॉक्टर सतीश शाह ने बहुत अच्छा बताया वैक्सीन के बारे में। बाकी मैं भी दूसरा पूछूंगा, अब नेक्स्ट में आपके द्वारा फिर आऊंगा। एक बार तो बहुत ही अच्छे वैक्सीन के बारे में बताया। तो जो वेरिएंट है इसमें वैक्सीन हमारी काम की, हमारे जो इंडिया के लोग हैं वैक्सीनेटेड है, इसलिए उनको इफेक्ट कम हुआ है, इस वेरिएंट से कम केसेज आए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिर आऊंगा। अब ट्रीटमेंट के बारे में, जैसे डॉक्टर सतीश ने बताया ट्रीटमेंट करना चाहिए। टिल डेट नो स्पेसिफिक रिकमेंडेड ट्रीटमेंट बाय द FDA. So but as of now you find various remedies more than the COVID-19 or its variant cases around the global, especially India. कोई झाड़ा लगवाएगा, कोई कुछ करेगा, please overlook these unauthorized remedies. So now I will ask question to Dr. Bhatia. How will you manage this variant infection? Yes, Dr. Chhabra very rightly said. Am I audible? Yeah. Basically, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कोई नया नहीं है, वही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जो कि 3 साल पहले भी था, 2 साल पहले भी था, ओमिक्रॉन के लिए भी था, और आज भी इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, सेम प्रोटोकॉल ही फॉलो करना है। लेकिन इस क्योंकि पब्लिक प्रोग्राम है, अभी अपने सभी मित्रों को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। पहले क्या हुआ था, एक सबक याद होगा आप लोगों को कि लोग मार्केट में जाके खुद ही रेमडेसिविर के इंजेक्शन परचेज कर रहे थे और लगवा रहे थे। तो कभी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होती है तो मेरे फ्रेंड्स डॉक्टर सतीश, डॉक्टर छाबड़ा, डॉक्टर ज्योति एंड डॉक्टर चावला सबने यही चीज रिकमेंड करी है कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके कहने पे ही ट्रीटमेंट पे जाएं। डॉक्टर छाबड़ा, कैन यू शेयर द स्लाइड प्लीज? Yeah. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इज बेसिकली कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंट करना है हमने इस बीमारी को। बेसिकली प्रिवेंशन क्या है? सेम फॉर्मूला ऑल ऑफ अस आर सेइंग, रिपीटेडली सेइंग, वही बार बार बात कर रहे हैं कि आइसोलेशन नंबर 1, उसके अलावा सैनिटेशन, हाथ साफ करने बार बार, क्राउडेड प्लेस पे नहीं जाना है, एंड मास्क लगा के रखना है। जैसे कि मेरे फ्रेंड डॉक्टर सतीश ने बहुत अच्छी तरह बताया है कि अगर ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कुछ है, कुछ बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है या कोई कैंसर का पेशेंट है, उसको कीमोथेरेपी चल रही है, या कोई डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या हार्ट का भी पेशेंट है, या इम्यूनिटी कम है किसी वजह से, कुछ ऐसी बीमारी होती है इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स को कई बार एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन है या ऑलरेडी लंग्स में स्कारिंग हो चुकी है, कोई फाइब्रोसिस हो गया, तो ऐसे पेशेंट्स को एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। पर मोस्टली ये देखा जा रहा है इस पर्टिकुलर वायरस में कि मोस्टली पेशेंट घर पे ही ठीक हो रहे हैं, आइसोलेट घर पे ही ठीक हो रहे हैं और कोई एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। जहां तक एंटीवायरल्स का रोल है, बेसिकली इट इज स्टिल वेरी मच डूबियस। अगर स्कारिंग ऑफ लंग्स है या कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन है, डेफिनेटली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है।
एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कोई विशेष डिफरेंस नहीं है. ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इज मोर और लेस सेम जो आज से 3 साल पहले था, सेम प्रोटोकॉल अब भी चल रहा है. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर छाबड़ा. थैंक यू. आपने बहुत अच्छा बताया कि अभी तक ट्रीटमेंट कोई नहीं आया, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है हमने. वो अमिताभ बच्चन जी कहते थे ना, जब तक कोई दवाई नहीं, जब तक कोई ढिलाई नहीं. कोई ढिलाई नहीं देनी है जब तक आपने प्रिवेंशन वगैरह, जैसे SMS बताया, वैक्सीनेशन बताया, ये हमने सब कुछ एहतियात बरतने हैं उसको बचने के लिए. अब मैं आऊंगा डॉक्टर अगेन ज्योति चुग से. मैं दो बातें पूछूंगा. व्हाट इज योर एडवाइस टू योर प्रूडेंट वुमेन? दो आपने सब कुछ बता दिया है हमारे को, मैनेज कैसे करते हैं. आप उसे मैनेज कैसे करेंगे अगर इन्फेक्ट हो गया तो? और दूसरा, लैक्टेटिंग मदर, उसको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए बच्चे को बचाने के लिए? डॉक्टर ज्योति प्लीज. डॉक्टर ज्योति. हाँ जी सर. अच्छा, ऐसा है कि अगर वो प्रेग्नेंट वुमेन है एंड शी हैज कॉन्टैक्टेड द इन्फेक्शन, तो रूल इज सिंपल. शी हैज टू बी एट होम, शी हैज टू बी अवॉइडिंग वर्क, शी हैज टू वेयर अ मास्क, सो दैट, एंड अपने आप को फैमिली से भी थोड़ा आइसोलेट कर ले तो अच्छा है, सो दैट शी डजंट पास इट ऑन टू अदर पीपल. और अपनी हाइड्रेशन पूरी रखेगी वो, अपने लिक्विड इनटेक, और सिम्टोमेटिक अगर उसका जो जो उसकी प्रॉब्लम्स आएंगी उसको ध्यान रखना है. वैक्सीनेशन प्लीज लगवा लें प्रेगनेंसी के किसी भी ट्राइमेस्टर में. बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन मना नहीं है, वैक्सीनेशन इज एनकरेज्ड इन एवरी ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. तो पर अगर हो गया है तो देन शी हैज टू ओनली बी एट होम, एंड इट इज लाइक अ वीक ऑफ रेस्ट. इट इज नॉट लाइक कि आपको बहुत लंबा रेस्ट लेना है. तो एक हफ्ते में ये वायरस अपने आप ही इन्फेक्शन सेटल हो जाती है. कॉम्प्लिकेशन होने से बचना है तो हाइड्रेशन अपनी पूरी रखनी है, मास्क पहनना है, थोड़ा अपने आप का खाने पीने का एक्स्ट्रा ध्यान रखना है. एंड टू अ लैक्टेटिंग मदर इट हैज़ टू बी वेरी सिंपल दैट शी मस्ट वेयर अ मास्क व्हेन शी इज ब्रेस्ट फीडिंग. ब्रेस्ट फीडिंग हम मना नहीं करते हैं अनलेस शी इज वेरी सिक. और अगर उसकी सिक है तो ऑब्वियसली द बेबी इज केप्ट अवे फ्रॉम द मदर, फिर नहीं हम बच्चे को पास में रहने देते हैं. पर अदरवाइज अगर शी इज माइल्ड इलनेस, माइल्ड वायरल इन्फेक्शन है, तो मास्क पहने और ब्रेस्ट फीड करे, उसमें कोई मनाही नहीं है. तो दीज आर सिंपल रूल्स टू बी फॉलोड. हाइड्रेशन दोनों कंडीशंस में चलेगी, प्रेगनेंसी में भी और लैक्टेशन में भी. दैट इज बहुत ऑल. अच्छा, देयर इज नो बहुत अच्छा अदर. ज्योति जी ने बहुत अच्छा बताया कि लैक्टिक मदर को भी और प्रेग्नेंट वुमेन को क्या क्या वही ध्यान तो वही रखने हैं, इसमें कोई खास ध्यान नहीं है. लेकिन बच्चे जब लैक्टेटिव मदर है उसको पूरा ध्यान रखना है. अगर ज्यादा सिक हो तो उसको दूध वगैरह नहीं पिलाना, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी है. हाँ तो जी, अब मैं अब आता हूँ डॉक्टर चावला के पास. डॉक्टर चावला, नेगेटिव जैसे आपने बताया, मीडिया मीडिया बड़ी नेगेटिव बताता है. दत्तकाती हॉस्पिटल है, ये है, इतनी इतनी गंदी गंदी बातें बताता है, रूमर बताता है. तो ये नेगेटिव जो जितनी फीलिंग होती है ना, नेगेटिव अप्रोच जो है, हमारे में अनरेस्ट, हमारे में भी, और अनसिन फियर भर देते हैं, दिमाग में इतना डरा देते हैं कि बंदा क्या करे. वो क्या अल्टीमेटली क्या होगा, मेरे को जो बेड नहीं मिला, मारकुट चालू हो जाएगी. उनको ये नहीं बताते कि इसमें कुछ नहीं है, लोग दवाइयां ले जाएंगे, कुछ करते. ये इसको कैसे बचा जाए? आप तो मैं DMC में, इसके बारे में कुछ बताइए. बड़ा अच्छा सवाल है डॉक्टर छावड़ा, इसमें कोई शक आप ये नहीं है. एक चीज बताइए, व्हाट आर योर सजेशन टू द पब्लिक, डॉक्टर, मीडिया एंड गवर्नमेंट टू कीप द हार्मोनी among them to deal with the infection as you are placed at a high profile post? डॉक्टर चावला. फर्स्ट डॉक्टर छावड़ा, फर्स्ट टू पब्लिक. देखिए, पब्लिक के लिए मैं इतना ही कहूंगा, जो एबल बॉडीड हैं, आई वुड ओपनली से इवन दाउ वी आर फेसिंग दिस न्यू वेरिएंट JN1, कोई डरने की जरूरत है ही नहीं. आम एबल बॉडीड लोगों को तो चुपचाप घर में बैठो, आइसोलेट कर लो. सेल्फ मेडिकेशन लोगों ने मना किया है, लेकिन आई वुड से टेक ओनली क्रोसिन. एंड जो ये एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज होता है हमारे देश में, लोग एजिथ्रोमाइसिन खा के आते हैं, ये निहायत गलत है. और आई वुड से टेस्टिंग बी डन बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है. 10 to 12 ईयर्स वाले हैं. बट मैं दूसरी कैटेगरी जिसको मैं हाई रिस्क पेशेंट बोलता हूँ, ऑल पीपल 70-80 हैविंग एनी क्रोनिक कोमॉर्बिडिटी लाइक क्रोनिक लंग डिसीज, लिवर डिसीज, हार्ट डिसीज, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जितने भी ये पेशेंट्स हैं, या दो इम्यून कैटेगरी के पेशेंट्स हैं जो कोई इम्यून सप्रेसेंट्स ले रहे हैं, उनको टेस्टिंग जल्दी करवाया जाए. बाकी इतना कोई घबराने की जरूरत नहीं है. कमिंग टू 6 वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर हील thyself फर्स्ट. अपनी सेफ्टी का ख्याल रखो, कोई तीरंदाजी करने की जरूरत नहीं है. प्लस अपने डॉक्यूमेंट्स, वेदर इट इज OPD पेशेंट और IPD पेशेंट, अपने डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखो. एंड फॉलो ए स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल ओनली. डोंट ट्राई टू गो बियॉन्ड, उसके आपको बहुत ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे.
थर्ड, आपने मीडिया पूछा. लेट मी टेल यू, एवर सिंस द एडवेंट ऑफ दीज न्यूज चैनल्स, उनको खबर चाहिए, सनसनीखेज खबर चाहिए. वो रोज, मैं टीवी इंटरव्यूज में आता हूँ, रोज खबर चाहिए. हालांकि इतनी जान नहीं है इस नए वेरिएंट में, लेकिन उन्होंने ऐसा दिखा रखा है जैसे कि बहुत बड़ा घमासान युद्ध होने वाला है. ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा. दूसरा जो आपने कहा है कि जो वायलेंस है, वायलेंस इज हर्ट्स ऑल ऑफ अस वेरी बैडली. उसके लिए फर्स्ट थिंग कहते हैं, कीप योर हाउस इन ऑर्डर. अपना डॉक्यूमेंट्स, अपना बिहेवियर, अपना कम्युनिकेशन फर्स्ट. देन all these associations and councils are there to help you always be on their side. उससे बहुत बचाव होगा. आपने चौथा सवाल पूछा, गवर्नमेंट्स क्या करे. We as associations and councils are supposed to be such building such pressure on them. जो हमने किया भी है, हमें और ज्यादा करने की जरूरत है. गवर्नमेंट, जहां तक गवर्नमेंट हैज टू बी डबल एजेड. इसने जनता को भी बचाना है और हम डॉक्टर्स को भी बचाना है. जनता को बचाने के लिए गवर्नमेंट की एडवाइजरी टाइम पे आनी चाहिए और कुछ फॉलोअप भी होना चाहिए. मैंने अक्सर देखा है कि गवर्नमेंट एडवाइजरी देती है, फॉलोअप एक पैसा भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. तो डाउन द लाइन मैं डॉक्टर्स को आम इंसान नहीं समझता. डॉक्टर इज ए सोशल लीडर, डॉक्टर इज ए एवरीबॉडी वाइज लीडर. अपने मरीजों का वो भगवान है, अपने मरीजों का वो हेल्थ मिनिस्टर है, अपने मरीजों का वो टोटल सरमायादार है. सो ही मस्ट यूटिलाइज दिस पावर इन ए मोर कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव मैनर, ताकि मरीजों का देखभाल भी करे और एट द सेम टाइम डॉक्टर की देखभाल करने वाला भी कोई होना चाहिए. उसके लिए वी हैव टू बिल्ड ए कॉमन ओपिनियन. We have to build up a common platform जहां हम सब इकट्ठे हों. I'll not waste my words because ज्योति खुश हो गई क्योंकि 9 बजे हमें दूसरी मीटिंग में जाना है. But I would always say together we will survive. हमें कोई यूनियन नहीं चाहिए, हमें एक कॉमन ओपिनियन चाहिए और अपने आप को बचाने की जरूरत चाहिए. इसी से हम डॉक्टरों, मरीजों की सेवा कर पाए. एंड दैट इज ऑफ utmost importance in days and months and years to come. Thank you very much, Dr. Chawla. थैंक यू डॉक्टर नरेश चावला, बहुत अच्छा बताया, टाइम कम लिया आपने. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट क्वेश्चन टू डॉक्टर सतीश. अगेन आई विल आस्क अबाउट द वैक्सीनेशन. आपने बता दिया वैसे बूस्टर डोज के बारे में, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा, इज देयर एनी रोल ऑफ द बूस्टर डोज इफ पेशेंट ड्यू टू फॉर दिस वेरिएंट? इफ यस, देन व्हेन इट शुड बी रिकमेंडेड? डॉक्टर सतीश. डॉक्टर चावला जी, एक बार आपका फिर से धन्यवाद कि आपने मुझे दोबारा से बोलने का मौका दिया. एक विशेष जो लोगों की मन में भ्रांति है वो ये है कि अमेरिका में जो है हर साल वैक्सीन बदल जाती है और भारत में जो वो पुरानी वैक्सीन हैं वही चलती आ रही हैं. तो क्या लोगों को नया वैक्सीन अमेरिका जाके लगवाना चाहिए? क्या उन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे देश की वैक्सीन को इम्प्रोवाइज करना चाहिए इस नए वेरिएंट के अनुसार? तो मेरा उत्तर इसके लिए एक बहुत बड़ी खास बात है कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि हमारे देश में एक वैक्सीन है जैनकोवैक OM, यानी जो कि एक RNA वैक्सीन है जिसको कि हमारे देश की कंपनी ने ही बनाया है और वो ओमिक्रॉन के अगेंस्ट स्पेसिफिक वैक्सीन. अगर आप वो लगवाना चाहते हैं तो वो भी इस वेरिएंट के अगेंस्ट इफेक्टिव होने की संभावना बहुत ज्यादा है. और जो हमारे देश की पुरानी वैक्सीन हैं, कोवैक्सीन है, इनकोवैक है, कॉर्बीवैक्स है, या जो हमारी कोविशील्ड है जो ज्यादातर लोगों ने लगवाई थी, वो वैक्सीन भी इस वेरिएंट के अगेंस्ट बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं. और यही वजह है कि टाइम नहीं है जो भी है, मैं तो एक मिनट दूंगा. हाँ जी सर, क्या लीजिए. हाँ जी बोलो. और यही वजह है कि ये वायरस जो है अभी तक हमारे देश के अंदर ज्यादा नुकसान नहीं कर पा रहा है. और जिन लोगों ने कल दो आए, 2 दिन मेरा क्वेश्चन ये है, इस वेरिएंट के लिए बूस्टर डोज लगवानी चाहिए जो वैक्सीनेटेड लोग हैं, या नहीं लगवानी चाहिए? यस या नो? डॉक्टर चावला काइंडली म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज थोड़ा सा. डॉक्टर चावला म्यूट कर दीजिए. डॉक्टर सतीश, माय क्वेश्चन इज दिस, पेशेंट को बूस्टर जैसे हमने लगा रखी है, बूस्टर भी लगा रखा है, इस वेरिएंट से बचने के लिए हमें बूस्टर डोज एक्स्ट्रा लगवानी चाहिए या नहीं? यस. बहुत बढ़िया, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है और इसका उत्तर बहुत सीधा साधा ये है कि जो हेल्दी पॉपुलेशन है, जो लोग 60 वर्ष की कम की आयु में हैं और जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी की बीमारी नहीं है, उन लोगों ने अगर 2 डोज वैक्सीन के लगवा लिए हैं तो उनको बूस्टर डोज लगवाने की आवश्यकता नहीं है. जो लोग हेल्थ केयर वर्कर्स हैं,
और जो लोग हाई रिस्क सेटिंग में काम करते हैं, जिनका एक्सपोजर ज्यादा होता है, उन लोगों ने अगर बूस्टर डोज नहीं लगवाया है तो उनको बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। जो बहुत लोग बढ़िया। पॉपुलेशन में, जी सर, जो लोग पॉपुलेशन में ऐसे हैं जिनको क्रॉनिक लंग डिसीज है, जिन लोगों को लिवर डिसीज है, जिन लोगों को किडनी डिसीज है, जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, जिनको कैंसर है, या जिनको रोमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बीमारियां हैं, या जिन लोगों को हाई डोज स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं किसी और बीमारी की वजह से, उन लोगों को बूस्टर डोज लगाते रहना, बूस्टर डोज लगवाना चाहिए और उनके अंदर ये इफेक्टिव हो सकता है। और केवल वैक्सीन ही नहीं, उनको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी रखना चाहिए और अपनी जो बेसिक डिसीज है उसको भी कंट्रोल करके रखना चाहिए। बहुत बढ़िया स्मार्टली आंसर दिया डॉक्टर सतीश आपने, बहुत ही बढ़िया आंसर लगा आपका मेरे को। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है उनको लगवाना चाहिए और हेल्थ वर्कर को लगवाना चाहिए, क्योंकि नाउ हमारी जो इतनी प्रेजेंटेशन का क्या मिशन है, हमारा मिशन ये है अपने इस स्प्रेड को रोकना है। जैसे डॉक्टर भाटिया ने बताया, SMS, social distancing, mask, and the sanitation of frequent hand washing. These are the three things, and we should avoid thoughts by maintaining the distance policy, by avoiding the three: crowd, congested space, and the closed space. This should be avoided. And what is the take-home message in the last? Update yourself about the COVID-19 and its variant time to time. लेकिन आजकल लोगों में क्या हो रहा है, हर लोग ये कहते हैं कि कृपया यहाँ ज्ञान मत बांटिए, यहाँ सब ज्ञानी है। लेकिन मेरे को 3 इडियट की एक बात याद है कि आपको जहां से नॉलेज मिल रहा हो तो आपने बटोर लेना चाहिए। तो नेक्स्ट, कीप ऑल द प्रिकॉशन, जैसे आप लोगों ने बताया, पैनिक मत होइए, प्रिकॉशन रखिए, पूरा कोविड बिहेवियर को करिए, मेंटेन कीजिए, फॉलो ओनली ऑथेंटिक सजेशन एंड द अपडेशन, and awareness by the unqualified person must be avoided, and refrain from the rumors. जो मीडिया हुए रूमर जितने भी है उससे थोड़ा दूर रहिए, उससे बच के रहिए। और पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द मीडिया इज रिक्वायर्ड, जैसे डॉक्टर चावला ने बताया, पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द मीडिया will definitely help to regain the load, to manage the COVID. So though it is difficult task, but nothing is impossible in this world. We can do it. So डॉक्टर चावड़ा, मुझे थोड़ा सा आप एक बार एक मैसेज देने मैं दीजिए। तो लास्ट में देता हूं आपको। तो लास्ट में ये कहूंगा, टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी बाय एनी मीन, चाहे न्यूट्रिशन से करो, चाहे किसी खा के गोली खाओ, कुछ भी मर्जी करो, विटामिन खाओ, टू फाइट अगेंस्ट द COVID-19 and its variant. So thank you. Now I give the mic to Satish for the final words. Dr. Satish, I will ask everyone for the final words, but only few words, not longer. मित्रों, ये कोविड वायरस कहीं नहीं जाने वाला। हर साल सर्दियों में इसकी खबर आपको मिलती रहेगी। आपको जो करना है वो ये है कि आप अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए। कोविड वैक्सीनेशन अभी भी अवेलेबल है, और अगर आपके आसपास कोई कोविड से वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसको मोटिवेट कीजिए। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जैसे किडनी डिसीज, लिवर डिसीज, कैंसर आदि, तो उसको बूस्टर डोज लगवाइए। इस प्रकार से आप कोविड के खतरे से बच पाएंगे, और संभव है कि आप आगे आने वाले कोविड के किसी भी वेरिएंट के खतरे से और उसके मृत्यु की संभावना से भी बच सकेंगे। और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा प्रसारित कीजिए। थैंक यू। Final word from the Dr. Nest. Only few words. अभी क्वेश्चन लेने चैट बॉक्स में, क्वेश्चन काफी हैं। I would only say nothing to fear. Before corona was invented or it came in the world scene, we had simple influenza. उसकी वजह से भी डेथ रेट इतना ही था, उसका भी इन्फेक्शन रेट इतना ही था। तो लेट कोविड नॉट बी ए panic button at all. It hardly exists, but we need to be strong, follow all the corona protocols which protect not only from corona but from tuberculosis also, or the respiratory disease also, and our good old pollution also. So a mass, universal masking, social distancing, and hand hygiene and good immunity by good food will remain your weapons to fight any such disease. Dr. Bhatia? Yes, my message to our medical community and our paramedical workers is that take care of yourself. Take care of the caretakers basically. Caretakers को दिक्कत हो जाएगी तो पेशेंट को कौन संभालेगा, नंबर 1. एंड टू द पब्लिक, टू माय डियर फ्रेंड्स, मैसेज यही है कि ओवर क्राउडिंग ना करें,
अननेसेसरी ट्रेवल ना करें, और जहां पे जरूरत समय वहां पे मास्क जरूर लगाएं जहां पे क्राउडेड प्लेस जा रहे हैं। अगर आपको ऑलरेडी कोई कंडीशन है, प्री मॉर्बिड कंडीशन है और कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो उसका प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएं, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। डॉक्टर ज्योति, फाइनल वर्ड। आई थिंक शी हैज लेफ्ट। अनम्यूट कीजिए डॉक्टर ज्योति। डॉक्टर ज्योति अनम्यूट करो। हाँ जी, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो भी अपने वैक्सीनेशन करा ले। Before they plan their pregnancy, they can be vaccinated. During pregnancy, they can be vaccinated. And once they are pregnant, then they have to just take their precautions. और कुछ नहीं है, it's like a viral infection, it will pass out. But extra care तो लेनी ही है. That goes without saying. There's nothing extra that has to be done. It will pass out like any virus. But Thank you very much. see a doctor whenever you have a problem. Don't sit at home and call us on the phone. We won't be able to guide you. Okay, That's it. thank you. Now 5 or 6 questions I will take one by one. Dr. Chawla, you will answer this question. How is the surveillance conducted to track the prevalence and the impact of these variants? Dr. Chawla. As I already said, in last 2 years after the Delta virus was over, we have had many variants: Omicron 1, 2, 3, 4, 5, 6, and now this is the latest JN1. Till now, what we have seen, they are not creating much problem at all. It is the media, believe me, it is particularly the visual media which keeps reminding us that it is there. Otherwise, it is mild, it is not very infectious, it is not very lethal, and I think we need to be watching. Dr. Chawla, he's asking how is the surveillance conducted? Nick, surveillance, you see, we in India, we do not have much. I think it is through the ICMR. No, it is not much is being done. None of the agency, including ICMR, it is done only doing it in the government hospitals, and it is very, very loosely done. As far as the private world Sir, goes, I would like to answer this question. If you, Dr. Chawla, if you kindly permit me, I would Sure, like to. sure. Yeah, sure. Please. The surveillance is done in 2 ways, Dr. Chawla and all the audience who are on the platform. First is that the government collects all the data from the test report from the various laboratories. It is mandatory for them to report to the government. हिंदी में डॉक्टर सतीश, हिंदी में हाँ, बताओ। सॉरी, हाँ, जितनी भी लेबोरेटरीज में जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब गवर्नमेंट के पास उनकी रिपोर्ट भेजना अनिवार्य है। गवर्नमेंट उन सब टेस्ट को देखती है, उनको समझती है, और उनके अंदर से कुछ टेस्ट का जीनोम टेस्टिंग करती है, जिससे कि पता चलता है कि हमारे देश में इस वक्त कितने कोरोना के केसेस हैं और कौन सा वेरिएंट चल रहा है। दूसरा जो सर्वेलेंस हमारे देश में होता है वो होता है सीवेज सर्वेलेंस। सीवेज सर्वेलेंस का जो मतलब है वो ये है कि जिस भी कॉलोनी से सीवेज वाटर जाता है, गवर्नमेंट उसके अंदर वेरिएंट्स की टेस्टिंग करती है, कोरोना वायरस की टेस्टिंग करती है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो फीकल मैटर में एक्सक्लूड होता है। अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि किसी खास लोकेलिटी से सीवेज के अंदर कोरोना वायरस के पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो वहां पर जो है सेग्रीगेशन और जो जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं। चलो, थैंक यू। Doctor, next question to the Dr. Bhatia. How important is the international collaboration in the monitoring and responding to the new variant? Yes, international collaboration basically as per the rules ये कहते हैं कि हर देश को अपना डेटा प्रेजेंट करना होता है WHO को। बेसिकली कितने केस आए हैं, उसके बाद WHO कंक्लूड करता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना देता है मैसेज। और WHO इस पर्टिकुलर स्ट्रेन के बारे में मैसेज ऑलरेडी दे चुका है कि इट इज ए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, तो डेल्टा वायरस था वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न था, तो इट इज ए बेसिकली माइल्ड वायरस है। ऑलरेडी WHO ये इंटरनेशनली मैसेज दे चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, are there any specific consideration for managing the patient infected with the variant? कौन बताएगा? I would like to contribute. Yeah. जैसे कि डॉक्टर ज्योति ने और डॉक्टर छाबड़ा जी ने और डॉक्टर प्रवीण भाटिया जी ने कहा कि इस नए वेरिएंट को मैनेज करने के लिए कोई विशेष इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, कुछ विशेष सावधानी की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि जो दवाइयां बाकी कोविड वेरिएंट्स के अगेंस्ट इफेक्टिव थी, इस वेरिएंट के अगेंस्ट भी वही दवाइयां इफेक्टिव हैं। आप बहुत ज्यादा पैक्सलोविड के अगेंस्ट ना भागें। हालांकि पैक्सलोविड की जो है 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को 5 दिन तक लेनी पड़ती हैं, लेकिन ये दवा केवल कोरोना के शुरू होने के शुरू में ही 5 दिन तक इफेक्टिव है। जब कोरोना का प्रकोप बढ़ जाता है, कोरोना का निमोनिया हो जाता है, उस वक्त ये दवाइयां काम नहीं करती। अगर इस प्रकार की कोई स्थिति आ जाती है तो खुद से ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें, हॉस्पिटल में एडमिट हो और डॉक्टर की सलाह से दवाई लें और उसके अनुसार काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Dr. Steve, thank you very much. Are there is any challenge or the consideration for the diagnostic testing in the context of the new variant? कौन बताएगा? Dr. Jyoti or Dr. Bhatia? Yes. Dr. Bhatia. Basically, diagnostic, at least any patient of influenza-like illness, ILI, must go for rat test at home, number one. He can do it, chemist shop पे available है, अपने आप कर सकते हैं. As far जैसे डॉक्टर सतीश ने ऑलरेडी बताया था, जिनोम सीक्वेंसिंग की बात है, वो गवर्नमेंट के हाथ में है, प्राइवेट के हाथ में नहीं है. बट RT-PCR अगर पेशेंट इंप्रूव नहीं होता है या रेड टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो all the patients having influenza-like illness must go for the RT-PCR test. Thank you, Dr. Bhatia. Next question. Have there any been observed a difference in the clinical presentation of the infection caused by the new variant? I think no, but who will answer Dr. Bhatia? Dr. Jyoti? but if you permit me, then the Yes, symptoms of please. Anybody can answer. the symptoms of the new variant are nearly the same as that of the old variants. It causes sore throat, and it causes dryness of nose. Running nose has not been seen in this variant. And of course, those patients जो लोग बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनके अंदर तो ये निमोनिया भी कर सकता है, ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है. लेकिन आम लोगों में बुखार, sore throat और dryness of nose. Dr. Satish, I will interfere with your permission. In few cases, GI disturbances have also been noted. Yes, definitely. You're right. I agree. You're right. Loose motion and GI Yes, it has been reported in few cases. reporting. Yes, they are reported. But running nose is not a part of the symptomatology of Yes, this. right. Rightly said. Right, very Rightly said. Rightly said. Running nose is not there. So there is no chat, more question in the chat box. Now I will hand over the mic to our organizer. Dr. Sunil. Shamla, this is my book. I don't know whether this it is can book. be focused or not. सब लोग देख लीजिए बुक है, किसने खरीदी है तो खरीद सकता है. Very Yes, the hearty book is- congratulations, Dr. Satish. Dr. Chawda, permit me to make a statement and a word of appreciation of Dr. S.K. Gupta. He took special pains during the whole of the bad, so-called bad phase of first wave and second wave. And अब तो his चेहरा तो clinical... दिखाओ, चारों चेहरा तो दिखाते ना. Oh, yeah, but I am on the way to the meeting. You must understand that. My compliments to Dr. Chawda for bringing everyone together, for giving a comprehensive, total overview of from the medical point of view, because TV channels तो देती रहती हैं, but this was much more required and very, very nicely done. Thank you very much. The name of the book is Thank you, everyone. Journey of COVID in India by Dr. S.K. Gupta. Journey of COVID in India by Dr. S.K. Gupta, and the book is available on Amazon. One can go and click and get the book. Thank you very much. It's not very expensive, you. also nearly Thank 500 you. rupees. Thank you very Thank much. you. And again, thank Thank you to you. the organizer. Now Thank I you, will sir. hand over the mic to the organizer. Thank you. Saryam? Thank you, Yes, sir. organizers. Sir, I Thank have you, to thank you, also sir. leave. Thank you, ma'am, for joining us today. I would like to thank all the panelists for joining us today and sharing their wonderful knowledge with us. Hope to see you again, sir, Thank you. ma'am. Thank you very Thank much. you. Very Good much. night. बच के रहिए, आप भी बच के रहिए. Thank you. Yeah. Thank you, sir.